अभी तक हम लोग दो तरह के फील्ड एक्सपीरियंस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। वन इज ग्रेविटेशनल फील्ड। द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मास। एक ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मास, there is no contact between the two, even then it applies a force on it, and this is because of a field, and that field we have studied, which is known as gravitational field. After this we studied that particle is also having another property to apply the force, and cause of that property is electric charge. किसके पास, किसी मटेरियल के पास अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये एक दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। इट मे बी अट्रैक्शन, इट मे बी रिपल्शन, एंड दिस फोर्स इज विदाउट ए कॉन्टैक्ट। हाउ इट अप्लाइज? वी से इट क्रिएट ए फील्ड अराउंड इट। तो इसने भी यहां पर एक फील्ड क्रिएट किया। This we have studied. It has created a field. इस फील्ड का नाम हमने क्या रखा? Electric field. So these are the two type of field we have studied. Gravitational field, the cause is mass. Electric field, the cause is electric charge. In both the fields, the force is applied without contact. बिना कांटेक्ट के दूर से ही ये फोर्स लगा देते। नाउ टुडे वी विल स्टडी थर्ड फील्ड इन अवर नेचर। ये फील्ड जो है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड? विच इज द सोर्स एंड हु एक्सपीरियंस दिस मैग्नेटिक फील्ड? इसके लिए हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, इट शोज ए पिक्यूलियर बिहेवियर। ये बिहेवियर किस तरह का है कि ये एक सर्किट है, इस सर्किट में चार्जेस मूव कर रहे हैं। द नेट चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज इज जीरो। इट हैज गॉट मेनी फ्री चार्जेस। इसके पास बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स के बीच बीच में फ्री चार्जेस हैं। दैट वी हैव स्टडीड हाउ द करंट फ्लोज। When a current is flowing in the conductor, is the conductor having any charge or it is not having any charge? Answer is it's not having any charge. Then what is happening? The charges are simply moving. And how much is the net charge? Zero, because it is made of atoms and every atom is neutral. So the net charge is zero. If its net charge is zero, it has no capacity to make electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, इसलिए दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता। बट what we find that if a charge is moving in this direction, let us say a charge is moving in this direction, we find that it has turned like this. ये जा रहा था और जाते जाते ऐसे टर्न हो गया, अंदर की तरफ टर्न हो गया। नाउ इफ ए बॉडी इज हैविंग सर्टेन वेलोसिटी एंड इट टर्न्स, व्हाट इज नेसेसरी फॉर टर्निंग? आंसर, ए फोर्स इज नेसेसरी फॉर टर्निंग। अदरवाइज आवर फर्स्ट लॉ, इनर्शिया लॉ, सेज that any particle which is moving in a straight line will keep moving in a straight line unless a force is applied on it. And here we see that a particle which was moving otherwise in a straight line, it suddenly bends like this. So we look around कि ये क्यों मुड़ गया? जरूर इस पर किसी ने फोर्स लगाया। तो ये फोर्स हमने क्या किया? We tried it again. एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेके हमने यहां पर खड़ा कर दिया this Q. Now this Q is not moving. This Q is moving with certain velocity and it has bent downward or it has bent upward.
this. Okay. This charge which is stationary do not experience any force. This has turned. टर्निंग का मीनिंग क्या है? एक्सपीरियंस फोर्स. So our observation is when a charge is moving, it experiences force, and at the same location, if the charge is not moving, then it do not experience any force. That means the two things are necessary for experiencing force. Number one, it should be a charged particle. Number two, it should have a velocity at this place. अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है तब तो कुछ भी नहीं होगा. Neither this will feel experience, nor this will have force, nor this will have force. दोनों में से किसी के पास भी फोर्स नहीं है. फोर्स कब हम देखते हैं? When this thing is there. Okay, so this thing was initially seen, and it was observed that there is another type of force in our nature. क्यों? क्योंकि जब ये मुड़ता है इसके पास नेट चार्ज क्या है? जीरो. स्टिल इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स. यहां पर कोई ग्रेविटेशन नहीं है, फिर भी ये मुड़ता है. ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है, और वो बेंड हो गया, और बेंड होना हमेशा फोर्स की एक्टिविटी है. तो इसका मतलब कोई फोर्स है जिसके बारे में हम नहीं जानते. इस फोर्स को हमने और स्टडी किया. हमने देखा ये फोर्स कब लगता है? जब चार्ज मूव कर रहा होता है, और जब चार्ज स्टेशनरी है तो ये फोर्स नहीं लगता है. दिस वाज सीन बाय ऑर्स्टेड. ऑर्स्टेड ने इसको इस फॉर्मेट में नहीं देखा. He was having certain other format. तब तक जब ये ऑर्स्टेड ने ये चीज देखी थी, that was around 1850. तब तक हम इस फील्ड का एग्जिस्टेंस जानते थे. We knew that there is another field beside gravitation and electric, because we were knowing something known as magnet. मैग्नेट इज ए लोडस्टोन. एक तरह का पत्थर था, वो हमको मिलता था, और उसकी प्रॉपर्टी थी इट यूज टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस. एंड ये जो मैग्नेट था, इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जब हम इसको हैंग कर देते थे, लटका देते थे, तो इसका साइड एक हमेशा किधर जाता था? नॉर्थ, और दूसरा साउथ. It used to always stand in north-south direction. That was one property known as directional property of the magnet. इसके साथ एक और प्रॉपर्टी थी कि इससे अगर हम कोई भी आयरन का पीस इसके पास लेकर आएंगे, यहां पर, एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं होने के बाद भी ये इस पर फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींच लेता था. No contact. So if there was no contact, it was applying force on it. Then what is the method of applying force? हमको मालूम है दो मेथड होते हैं. One is contact method, other is field method. Without contact जो फोर्स लगता है, we always say it is creating a field around it. Anything in this field will experience a force. तो अगर ये मैग्नेट ने इस आयरन पीस पर फोर्स लगाया विदाउट कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए फील्ड. अब ये फील्ड कौन लगा रहा है? मैग्नेट. इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो हम ये समझते हैं या समझते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड मास से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से होता है. दैट्स ट्रू. ओके. मैग्नेट के फील्ड को हमने स्टडी किया एज ए डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस
as a different branch of physics, and we studied many things. Like we have another magnet in the shape of a magnetic needle. If this needle is suspended independently, तो ये किधर जाता है नॉर्थ और ये किधर जाता है साउथ, like this. ऐसा खड़ा रहता है हमेशा. Okay. And this directional property is used as a compass, means showing the direction, an instrument which is showing the direction. Okay. अब अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट रखते हैं, this magnet we put here, a bar magnet. We don't touch it. We put it here and we find that this turns in such a way that south comes here and north goes here. North, south, ये ऐसे टर्न हो गया. इसको हटा लेते हैं, ये फिर से वापस आ जाता है. इसको यहाँ पुट करते हैं, ये ऐसे घूम जाता है. Then we made our prediction. We say कि जब भी हम मैग्नेट लेकर आते हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लेकर आता है. मैग्नेटिक फील्ड अपना इफेक्ट लेके आता है, अपना फोर्स लेके आता है अराउंड इटसेल्फ, सो दैट विदाउट कॉन्टैक्ट इट कैन टर्न द थिंग्स. ठीक. अब हम क्या करने लगे, हमने बोला ये मैग्नेट है, चेक करो मैग्नेट है कि नहीं है. तो हम वो नीडल को लेके आए और लाके हमने बोला जरा ले जाओ. We put it like this, ऐसा टर्न हो गया. What is this? मैग्नेट. फिर से एक दूसरा स्टोन लेके आए, फिर इसको नीडल को रखा and we put it like this, this. ये टर्न नहीं हुआ. Then what do we declare? It is not a magnet. It is not creating any magnetic field. तो magnetic field check करने के लिए what is the system with us? Take a magnetic needle with you. If it is always in north-south direction, there is only, we will study that it is only a magnet of the earth. But if it goes to any other direction, that means there is some additional magnetic field acting on it due to something. Whosoever has created, but there is a magnetic field other than the earth. ये बात समझ में आई? Okay. So far we were knowing about this magnetic field. इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम ये जानते थे कि ऐसा बिहेवियर इसका होता है. अब ऑस्टेड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ही वॉज नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट विद द मैग्नेट, ही वॉज डूइंग सर्टेन अदर इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. पर वो क्या करते थे, उस इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक सर्किट बनाकर रखा था और इस सर्किट को वो बार बार ऑन या ऑफ करते थे. सेल लगा हुआ कोई सर्किट था, इसको ऑन ऑफ करते थे. बाय चांस उनके टेबल पर यहां पर एक नीडल रखी हुई थी, मैग्नेटिक नीडल. उन्होंने क्या देखा कि ये सर्किट को जैसे ही उन्होंने ऑन किया, ये नीडल ऐसे घूम गई, फिर ऑफ किया फिर ऐसे हो गई, फिर ऑन किया ऐसे हो गई, फिर ऑफ किया ऐसे हो गई. सो ही गॉट इंटरेस्टेड कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि नीडल किससे मूव करती है, मैग्नेट से और मैग्नेटिक फील्ड से. लेकिन न तो वो यहां पर कोई मैग्नेट लेकर आए, तो ये क्यों मूव की. सो ही डिड इट अगेन एंड अगेन. देन ही मेड सर्टेन मोर एक्सपीरियंस, सर्टेन मोर एक्सपेरिमेंट्स. ही रिवर्स द डायरेक्शन. अभी जब वो इसको ऐसे करते थे तो ये इधर मूव करती थी. उसके बाद इन्होंने बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दी तो करंट उल्टी हो गई. व्हेन द करंट इज रिवर्स, नाउ दे डिड इट एंड इट वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. इसका ये मतलब है कि इसको मूव करने में कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट. अब मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स किससे लगता है, आंसर मैग्नेटिक फील्ड से लगता है. यहां पर वो चेंजेस किस में कर रहे हैं, क्रिएट किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. उसका प्रूफ है कि नीडल मुड़ती है. तो उन्होंने दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया. एंड व्हाट इज दैट फिनोमिना? फिनोमिना इज द फेमस फिनोमिना, इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. और बाद में जाकर यही फंडामेंटल बन गया that
Now, how electric current is made? The electric current is made by motion of the electric charge. That means moving electric charge can create electric field, or electric current can create electric field. This was first observed by Oersted experiment. Oersted के सब्जेक्ट दूसरे थे, स्पेशलाइजेशन दूसरा था. He was working in that, so he did not work much on magnetism or electromagnetism. But by chance, this thing goes to his credit that he was the first person who connected electricity with magnetism. Otherwise, both were different branches. That was magnetism, this was electricity, electric field, etc. Okay, so this was history. Now we wanted to find out what actually is magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो हम दो चीजें पढ़ेंगे. नंबर एक, मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, व्हाट इट कैन डू, एंड हु क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हु क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो वी ऑब्जर्व दैट इफ ए चार्ज इज मूविंग and it turns its direction. If a charge is moving and there is a magnetic field, it will turn its direction. Okay. Can electric field turn its direction? Yes, electric field can also turn its direction. देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है like this. If a charge comes from this direction like this, plus it will experience a force, repulsion, attraction, and it will bend like this. So it has turned. Along the turning के साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, because there is a force QE. Because of that force there will be certain acceleration, and because of that acceleration its velocity will keep on increasing, and this will go like this, turn, and now it will stop turning. Finally it goes to which direction? To the direction of electric field. लेकिन हमने एक और चीज देखी कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं और एक चार्ज को हमने मूव किया, तो एक इलेक्ट्रिक करंट यहां पर जा रही है, गोइंग इनसाइड लाइक दिस, एंड वी मूव ए चार्ज दिस वे. देयर इज नो नेट चार्ज विद दिस, एंड इफ ए चार्ज इज मूविंग लाइक दिस, वी फाइंड दैट दिस चार्ज turn, further turn like this, and it keeps on turning. घूमता ही रहता है इसके चारों तरफ जब तक करंट फ्लो होते रहती है. दिस इज नॉट द फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, इसकी यहां पर स्पीड है, सपोज यहां इसकी स्पीड है v, तो यहां पर भी इसकी स्पीड है v, no acceleration. It keeps on turning and its speed does not increase. Electric field में हमने क्या देखा था? It will once turn towards electric field, then it will not turn. It will not turn, and its speed will go on increasing. So, electric field only align it in one direction, and it increases the speed. It cannot turn it further. This field is turning it further, always keep on turning without changing the speed. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इस फील्ड का हमने नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. So this was the difference between electric field and magnetic field. So what does a magnetic field do? Magnetic field turn a moving electric charge, and if the charge is not moving,
No effect. If the charge is not moving, no effect. Okay. Now, who has created this magnetic field? Answer: electric current is creating this magnetic field. And what is electric current? Moving charge. So, फिर से वही बात फैक्ट है, a moving charge create a field and that field effect on a moving charge. जैसे mass create a field known as gravitational field, but it will affect only mass. A stationary charge create electric field, it will affect a stationary charge. A moving charge create a magnetic field, it will affect a moving charge. Source or affected particle, they should be of the same nature, then only they recognize each other and interact with each other. Okay, so this is magnetic field. अब हम सबको ये लगता है कि इसमें तो मैग्नेट नहीं है, तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? ओके, वी आर स्टडिंग द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट किस चीज का बना है? आयरन का। आयरन के अंदर क्या है? आयरन के मॉलिक्यूल, आयरन के एटम्स। आयरन के एटम में क्या है? एटम के अंदर नाउ वी नो, आप लोग पढ़ चुके हैं, देयर इज ए न्यूक्लियस, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स विच आर मूविंग। दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मूविंग चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और वही जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। वही मैग्नेटिक फील्ड हमको मैग्नेट के चारों तरफ दिखता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन हुआ? मूविंग चार्ज। दिस चार्ज में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस चार्ज में मूव इन कॉइल। इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा एग्जाम्पल है? कॉइल। और ये कौन सा एग्जाम्पल है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैग्नेटिक फील्ड अ बिट मोर। इसमें फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ए मूविंग चार्ज। ये फोर्स को हम जानते हैं बिकॉज बेसिकली हमने फोर्स के बारे में ही पढ़ा है। फोर्स दो काम कर सकता है, इट कैन एक्सेलरेट एंड इट कैन टर्न। रादर हम लोग पढ़ चुके हैं इनर्शिया में, इट कैन डू द थ्री वर्क्स, इट कैन एक्सेलरेट, इट कैन रिटार्ड एंड इट कैन टर्न। तीनों तरह के इनर्शिया होते हैं, तीन तरह का ही इफेक्ट होता है। ओके, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लगता है? तो आंसर है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पहले ऐसे करते हैं। सपोज somebody asks us what is a magnetic field? Write one line answer. What is a magnetic field? Let's write it. What is magnetic field? Magnetic field is property of the space magnetic field is characteristic in the space due to which a moving charge experiences a force at right angle to its motion, at right angle to its motion, and then it turns. Okay, turn हो या नहीं हो, force उसको लगेगा. As a result of the force it may turn. Okay, this is magnetic field's definition. Now we were studying more about this magnetic field. Force on a moving charge in magnetic field F, this is proportionate to velocity V, velocity of charge. This is also proportionate to, हमने ये देखा
कि एक जैसी वेलोसिटी होने के बाद भी कहीं पर फोर्स ज्यादा लगता है, कहीं कम लगता है। तो हमने ये सोच लिया कि इस कमरे में अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, दूसरे कमरे में कम लग रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो फोर्स किस पर डिपेंड करने लगा? अच्छा, फिर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, उस पर ऐसे फोर्स लगा, ये इसने जाके इसको हिट किया 1 न्यूटन फोर्स से। दूसरा चार्ज पार्टिकल में लाया, इसी कमरे में इसी वेलोसिटी से भेजा, ये गया और इसने ऐसा हिट किया 2 न्यूटन फोर्स से। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो मेरा सिंपल आंसर था कि इसके पास चार्ज डबल था। तो फोर्स और किस पे डिपेंड करने लगा? चार्ज पर डिपेंड करने लगा। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, और इन तीनों को हमने मिला दिया एंड व्हाट वी गेट प्रोपोर्शनेट टू, और उसी को हमने 1 करके इक्वल किया फोर्स। ओके, आई विल राइट इट फर्स्ट दिस, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू Q V B. So force is proportionate to how much is the charge, how fast is the velocity, how strong is the magnetic field. इन तीन पर फोर्स डिपेंड करता है। अगर मैथमेटिकली हम इसको इक्वल करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा एंड दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर अस। हम लोग कांस्टेंट्स नहीं चाहते, वी वांट इट इन द बेसिक क्वांटिटीज। कांस्टेंट को कैसे हटाते हैं? द आंसर इज वी कैन नॉट। हाँ, एक शर्त पर हम हटा सकते हैं, अगर हम कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या आज हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आंसर है यस, मैग्नेटिक फील्ड बी। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी हम नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं उस समय हम ये एडवांटेज ले सकते हैं कि कांस्टेंट को 1 कर दे। नई क्वांटिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट 1 हो जाए। वी विल डिफाइन द न्यू क्वांटिटी इन सच ए वे दैट कांस्टेंट विल ऑटोमेटिकली बिकम 1। हाउ टू डू दैट? इन दिस, इफ Q is equal to 1, V is equal to 1, F is equal to 1, then and B is equal to 1. Q 1 1 1 1, then K is equal to 1. अब ये चारों क्वांटिटी 1 कैसे हो सकती हैं? अगर Q 1 है, V 1 है, F 1 है तो B 1 है, ये जरूरी है क्या? हमने उसको डिफाइन ही वैसे किया। क्या हमने ये डिफाइन किया? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 यूनिट इफ वी मूव ए चार्ज 1 कूलम with a velocity 1 meter per second and it applies a force 1 Newton. तो हमने क्या क्या कर दिया? Q is equal to 1, V is equal to 1, F is equal to 1 and there is certain magnetic field. We say that from now onward that magnetic field is also 1 unit. तो अब हमने B को क्या कर दिया? 1, और इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पहले तो B डिफाइन हुआ ही नहीं, पहली बार हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं? 1B क्या होता है? विच अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इफ द मूविंग चार्ज इज 1 कूलम एंड इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। तब वो जो फोर्स लगाएगा 1 न्यूटन लगाएगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। अगर वो फोर्स कम लगाता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अगर फोर्स ज्यादा लगाता है तो स्ट्रेंथ को कम करेंगे। वी कीप द स्ट्रेंथ सो मच दैट द फोर्स इज 1 न्यूटन। एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वी हैव टेकन एज 1 यूनिट। ये हमने नई यूनिट बनाई। तब K क्या हो जाएगा? 1। और ये चालाकी करके हमने K को 1 कर दिया। अगर K को 1 कर दिया तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल टू charge into velocity into magnetic field. All basic quantities
नो कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, F is equal to QVB. Now there is one thing, we have not taken direction into account. Force is a vector quantity, velocity is a vector quantity, and any field is a vector quantity. अच्छा, यहां पर जो फोर्स लगता है ये हमने एक्सपीरियंस करके देखा कैसा लगता है। द आंसर इज, इफ द चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट्स वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज, दैट मीन्स फोर्स इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, देन this velocity and this magnetic field interact with each other and we get the force in this direction. The force is at right angle. Right angle to what? Right angle to velocity, right angle to magnetic field. फिर से ये magnetic field नीचे काम कर रहा है और चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, चार्ज इधर जा रहा है, जाते जाते चार्ज ऐसा मुड़ गया अंगूठे की तरफ। ये कब होता है? तो आंसर है, दिस सिचुएशन वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 व्हेन वी वर स्टडीइंग वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर क्वांटिटीज, लाइक फोर्स इनटू the distance of the arm gives the torque and the direction of torque is at right angle to force as well as displacement. ठीक है, यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं? Magnetic field is in this direction, this is magnetic field, this is the direction of charge and the force is at right angle to both of them. इसलिए ये क्या होना चाहिए? This should be a वेक्टर प्रोडक्ट। फिर से देखिए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, b is a vector quantity, there is a multiplication of the two and what we find that force is again a vector quantity. When do we get it? When there is a vector product. प्लस हमने ये प्रूफ देखा कि इसका जो रिजल्ट हमको मिलता है that is at right angle to both. That also confirm कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट की निशानी क्या है? एक तो उसकी डायरेक्शन राइट एंगल पे रहेगी दोनों वेक्टर के, और दूसरी निशानी क्या है? वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज? इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, सो वी राइट इट लाइक दिस। ये देखिए इसका रूप सुधरते जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला व्हाट वी गेट। अब अगर हम इसको इसकी वो निकालेंगे मैग्नीट्यूड, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? Q VB sin theta, and where what is the theta angle between what? The two vectors which are having the product. That means theta is angle between V and B. Theta is angle between V and B. ये आ गया F is equal to QVB sin theta. This is force due to magnetic field. Okay. अब इसके बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं। अभी तक हम किस किस को डिफाइन कर चुके? इसमें फोर्स क्या होता है? वी नो द फोर्स। हाउ डू यू नो? हाउ मच इज 1 न्यूटन फोर्स? कोई बता सकता है 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? अगर मैं आपको बोलूं मुझे 1 न्यूटन फोर्स से दबाइए, तो कैसे करोगे? कितने जोर से पुश करोगे कि वो 1 न्यूटन होगा? नो, मैं आपको दबा सकता हूं, ऐसे हाथ को रखो और मुझे आप बोलोगे इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा दो। तो मैंने क्या किया, एक ये 100 ग्राम का बाट उठाया, 100 ग्राम्स, और यहां रख दिया। अब बताइए ये 100 ग्राम्स आपके हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है? mg। हाउ मच इज दी m? 0.1 kg।
कितना kg? And how much is G? 10. So how much is force equal to mg? 1. कितना लग रहा फोर्स मेरे हाथ में? 1 न्यूटन. तो डरिए मत, 1 न्यूटन कोई आकाश की बात नहीं है, हमारे हाथ में है. What we have done, 100 ग्राम पुट ऑन योर हैंड. ये हाथ को थोड़ा तो दबाएगा ना, जितना दबाएगा वही क्या है? 1 न्यूटन. तो फिजिक्स की चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए नहीं होती हैं. अब मुझे आप बताइए, अगर मैं 5 किलो का बाट रख दूंगा तो कितने न्यूटन से हाथ दब रहा है? यस, 50 न्यूटन से. समझ आया? सो दीज आर द थिंग्स टू बी एक्सपीरियंस्ड. एनीवे, व्हेन वी कम हियर अगेन, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. यहां पर हम B को डिफाइन करना चाहते हैं कि B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द फुल नेम फॉर B इज व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Now we will define what is the unit magnetic field. Intensity 1 कब होगी? वन कूलम वन मीटर पर सेकेंड. Theta is equal to 90 degree. So that sin theta is equal to 1. Then intensity of magnetic field is the force. ठीक है, उस समय जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? यहां पर उस रूम में इतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है. ओके, वी विल राइट इट. The intensity of magnetic field at a location is equal to force experienced by a particle which is having a charge 1 coulomb and it is moving with velocity 1 meter per second at right angle to the magnetic field. इसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तब फोर्स कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन. तब जितना फोर्स होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? और अगर वो फोर्स 1 न्यूटन होगा तो वो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1. अब हम उसका नाम रखेंगे कि वो इंटेंसिटी कितनी होगी. यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने सिंबल क्या बनाया? B. दैट इज रिजर्व फॉर इट. जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए क्या रखा था? E. वैसे मैग्नेटिक के लिए B. यूनिट ऑफ B इज टेस्ला in SI system. Okay. At which location the magnetic field will be 1 Tesla? 1 Tesla magnetic field कितना स्ट्रॉन्ग होता है? तो इसके लिए हम आपको बता सकते हैं B is equal to F Q V sin theta. In this, F is equal to 1, F is equal to 1, Q is equal to 1, V is equal to 1 and theta is equal to 90 degree. Then B is equal to 1. So you can note down the magnetic field at a point is 1 Tesla. वही चीज जो हमने पहले लिखी थी
magnetic field intensity so we are defining 1 Tesla. Magnetic field intensity at a point is 1 Tesla. If a charge of 1 coulomb experiences a force of 1 Newton while moving with velocity of 1 meter per second at right angle to B. Okay, so this is about force.